हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एंड दिस इज संतोष सर। एंड आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट MCO 07 का यूनिट 11 ये चैप्टर है। एंड हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके आंसर्स जो आपके एग्जाम्स में स्ट्राइक कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा टिल द एंड, बिकॉज इसके अंदर हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम्स में स्ट्राइक कर सकते हैं। एंड जो बोर्ड पे जो नोट्स मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, आपको जस्ट उसको एक्सपांड करके थोड़ा सा लिखना है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आई वुड रिक्वेस्ट कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। ओके फ्रेंड्स, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज दिस प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग इज ऑल अबाउट। Now, I have written some very important key points so that you can develop your answer, and the concept about project financing will be clear in your mind. So the first point is it refers to long-term financing of infrastructure and industrial projects, right? These two words are very important. Infrastructure like roads, bridges, dams, all these things, and industrial projects, very heavy industries, right? It is based on projected cash flows of the project as an independent economic unit. Now, the whole of the project acts as an independent economic unit, and whatever the cash generated or the revenue that will come up from that project will be used to pay off the investors. There are number of investors known as sponsors. बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट करता है इसके अंदर, दे आर कॉल्ड स्पॉन्सर्स, फाइन। अब ये स्पॉन्सर्स प्राइवेट इंडिविजुअल्स, कंपनीज या फिर गवर्नमेंट की कंपनीज भी हो सकती है। कैश फ्लो फ्रॉम द प्रोजेक्ट इज यूज्ड टू रिपे द डेट्स एंड टू मेंटेन द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद में जो कैश जनरेटेड होगा, जो रेवेन्यू जनरेट होगा वहां से, दैट इज यूज्ड टू पे ऑफ द स्पॉन्सर्स, राइट। एंड इसका मेंटेनेंस का कॉस्ट भी है, बहुत सारे स्टाफ्स काम करते हैं, उनके सैलरीज हैं, एक्सपेंसेस हैं। सो ऑल दिस आर मेट आउट ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम दैट प्रोजेक्ट, फाइन। द नेक्स्ट वन इज स्पेशल पर्पस व्हीकल, द फुल फॉर्म SPV इज क्रिएटेड, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब कोंकण रेलवे दैट इज महाराष्ट्र से मालाबार कोस्ट के थ्रू से केरला तक गया था, तो वहां पे भी एक SPV बनाया गया था। SPV होता है लाइक ए डिफरेंट बॉडीज क्रिएटेड टू मेंटेन डेवलप द प्रोजेक्ट, एंड इट इज आल्सो रिस्पांसिबल टू क्रिएट sufficient revenues so that all the lenders, sponsors are paid off, ठीक है। So that is called SPV, very important. Then there are agreements between SPV and sponsors, lenders, suppliers, government, etc., known as contractual bundling. This point is also very important. There is an agreement. एक agreement होता है between SPV and all the other parties involved in that project. Okay, and that is called contractual bundling. Then it is related to mega projects. छोटे मोटे प्रोजेक्ट नहीं, मेगा प्रोजेक्ट्स, वेरी वेरी बिग प्रोजेक्ट्स which are not possible to be developed by private individuals, right? इसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, बहुत सारी कंपनीज होती हैं, and they work together as a team to develop the project. And it is related to mega projects like power, roads, bridges, railways, oil and gas, all this very big projects. Usually a period of 20 years is given to sponsors to recover their investments, known as concession period. Now this last point is also very important. यहाँ पे गवर्नमेंट 20 years का टाइम देती है स्पॉन्सर्स को कि प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद वो वहां से अपना जो इन्वेस्टमेंट है जो उन्होंने किया है प्रोजेक्ट में, वो रिकवर करें, राइट। ऑलराइट फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट important topic of this chapter, and this is the ideals of a successful project. So what are the requirements of a good or successful project that can be financed, right? So I have written here 6 points, that is latest technology, because every sponsor wants to use the latest technology for their project. Then economic value, that means
after the completion of the project, it must stand as an independent economic unit. That means प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद में प्रोजेक्ट ऐसा होना चाहिए कि वहां से इकोनॉमिक वैल्यू मिले, उसका रिटर्न मिले। एवरी स्पॉन्सर का यही उसका इच्छा होता है कि जो इन्वेस्टमेंट उसने किया है उसका रिटर्न, सफिशिएंट रिटर्न उसको मिल जाए विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड। देन थर्ड, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। नाउ without a good proper management, nothing can be successful. So in case of a project also, you need a very good teamwork. ठीक है, एक अच्छी टीम होनी चाहिए, एक अच्छी मैनेजमेंट होनी चाहिए। अदरवाइज उसकी जो इकोनॉमिक वैल्यू है या जो इन्वेस्टमेंट जो प्रोजेक्ट में हुआ है वो रिटर्न नहीं मिल पाएगा। फाइन। नेक्स्ट, availability of raw materials. Now every sponsor, lender, government, they are all concerned with this कि प्रोजेक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स है कि नहीं है। आर देयर सफिशिएंट सप्लायर्स टू सप्लाई द रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल्स फॉर द प्रोजेक्ट। सो ये चीजों को इंश्योर करना है, राइट? ऑलराइट, नेक्स्ट वन, सक्सेसफुल कंप्लीशन। नाउ एवरी प्रोजेक्ट का कंप्लीशन का एक टाइम पीरियड होता है, लेट इट बी 10 years या फिर 20 years या 5 years। तो स्पॉन्सर पैसा लगाता है सो दैट वो चाहता है कि प्रोजेक्ट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, जो उसके टारगेट पीरियड है उसके अंदर वो कंप्लीट हो जाए। फाइन। सो दैट उसको वो लोग फिर इकोनॉमिक टर्म्स में यूज कर सकते हैं, वहां से इनकम आनी शुरू हो जाएगी। फाइन। देन पॉजिटिव एनपीवी। एनपीवी के बारे में मैंने पहले वीडियो अपलोड किया हुआ है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। जो प्रोजेक्ट का जो इन्वेस्टमेंट है, जो उसमें जो खर्चा हो रहा है, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं। ठीक है, तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स फॉर अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है। फाइन। इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज रिस्क एसोसिएटेड विद अ प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट के पीछे क्या रिस्क अटैच्ड होते हैं। डेफिनेटली प्रोजेक्ट नया चीज है एंड जहां पे रिस्क ज्यादा होगी वहां पे रिटर्न भी अच्छा होगा। तो स्पॉन्सर्स को तो रिस्की वेंचर में उसको कदम रखना है। तो यहाँ पे रिस्क, क्या क्या रिस्क है? जनरली ये जो सक्सेसफुल आइडियल्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, इसके जस्ट अपोजिट ही हैं, नॉट मच डिफरेंस। तो अगर क्वेश्चन आता है तो उसको एक्सप्लेन करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे यहाँ पे रिस्क विद द प्रोजेक्ट में टेक्नोलॉजिकल रिस्क, कि जो प्रोजेक्ट में जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं हम लोग वो आइसोलेटेड नहीं हो, ठीक है, वो पुरानी नहीं हो, it should be latest. Then completion risk, that means the project must be completed within the time period, within a definite time period जो set किया हुआ। Then raw material risk, कि जो raw material suppliers हैं वो raw materials regularly and sufficiently timely supply करें प्रोजेक्ट के लिए, तो वो भी एक रिस्क है। Then maintenance risk, now maintenance risk generally depends on the SPV और management। तो उसकी मेंटेनेंस अच्छी होनी चाहिए सो दैट वहां से वो लोग रिटर्न जनरेट कर सकते हैं सफिशिएंटली। देन वी हैव सम अदर रिस्क टू, लाइक इकोनॉमिक रिस्क। जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए तो वहां से उनको सफिशिएंट रिटर्न मिलना चाहिए। ठीक है, ये भी वो उम्मीद करते हैं स्पॉन्सर्स, बिकॉज वो लोग इतना पैसा लगाए हुए हैं, इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। सो वो लोग उम्मीद रखते हैं ना कि भाई मेरे को रिटर्न इतना मिल जाना चाहिए। तो ये चीज यहाँ पे है इकोनॉमिक रिस्क, राइट? जैसे मान लो कि मेट्रो प्रोजेक्ट जब चालू हुआ था तो मेट्रो भी एक उसका एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के अंदर जो उसकी सेल होती है, जो जो टिकट्स की जो वैल्यूज होती है, वो सारे उसकी इनकम है, तो वो इनकम स्पॉन्सर्स के पास जाती है आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द एक्सपेंसेस। ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट वन, पॉलिटिकल रिस्क। अगर कोई पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज होता है, अगर देश में कंट्री में अगर पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज होते हैं तो वो भी अफेक्ट कर सकता है एक अच्छे प्रोजेक्ट को। देन एनवायरमेंटल रिस्क। नाउ जनरली एनवायरमेंटल रिस्क भी आजकल ये अटैच्ड है, जैसे आपके पावर प्रोजेक्ट, जो हम लोग हिल स्टेशंस में जो पावर प्रोजेक्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं तो वहां पे थोड़ी सी एनवायरमेंटल की दिक्कत आती है। ठीक है, सो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है प्रोजेक्ट के लिए।
तो स्पॉन्सर्स को ये सारे रिस्क को कंसिडर करना है बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू अ प्रोजेक्ट. Alright friends, let's move on to the next topic of this chapter, and this is the difference between corporate finance and project finance. Right? Now let's see दोनों के अंदर क्या फर्क है. In corporate finance, each project is not a separate legal entity. उसकी कोई मतलब सेपरेट यूनिट नहीं होती. जो कंपनी है, जो बिजनेस है, जिसका प्रोजेक्ट है, उसी के साथ में वो अटैच होती है. And here each project is a separate legal entity. Now it is managed by board of directors. And it is managed by SPV, right? Special Purpose Vehicle. Here debt ratio is very low, and here debt ratio is very high. यहाँ पे बहुत डेट्स लेने पड़ते हैं स्पॉन्सर से, लेंडर से, कंपनी से, गवर्नमेंट से, ऐसे बहुत सारे डेट्स लेके प्रोजेक्ट फाइनेंस स्टार्ट होता है. एंड इट हैज ए परपेचुअल सक्सेशन. जनरली कंपनी के साथ में रहता है हर प्रोजेक्ट, तो मतलब लॉन्ग टर्म, जब जनरली कोई इसका टाइम पीरियड नहीं होता. एंड एवरी प्रोजेक्ट का एक टाइम पीरियड होता है. एंड वंस द कंसेशनल पीरियड जनरली इंडिया में 20 इयर्स होता है, तो 20 इयर्स के बाद में फिर वो एसपीवी बंद हो जाती है. दैट मीन्स द प्रोजेक्ट इज हैंडेड ओवर टू द गवर्नमेंट. देन हियर फाइनेंस कैन बी रेज्ड क्विकली, एंड हियर raising finance is a very complex structured process. All the assets and cash flows of all the projects are mixed together, and here different, right? So all these points इसको आप expand करके आप answer create कर सकते हो. Very important. Okay friends, that's all in this video. And ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में. और इसमें जो इम्पोर्टेंट नोट्स मैंने शेयर किए हैं उसको आप अच्छे से रिवाइज करो. एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर examination. See you in the next video. Till then, goodbye. Take care.